خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تلاوت کلام پاک یوحنا عرب کا مکاشفہ اس کا 3 باب 7ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، اور فلادیلفیا کے کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور دولت کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ، میں شیطان کہ ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ، میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہو سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ مقدس کلام کا یہاں تک پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزوں، فلادیلفیا کی کلیسیا مکاشفہ 3 باب اور اس کی 7ویں آیت سے 13ویں آیت تک، جب ہم فلادیلفیا کی کلیسیا کے بارے میں یہ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے فلادیلفیا کی کلیسیا کے معنی، اس کے معنی جو ہیں وہ برادرانہ محبت کے ہیں۔ عبرانیوں 13واں باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں، رومیوں 12:10 میں دیکھ سکتے ہیں، یوحنا 13 اور 35 میں دیکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، برادرانہ محبت رکھنے والی یہ کلیسیا ہے۔ جب ہم کلام مقدس میں سے یہ ہم بغور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ خدا نے بھی ہمارے ساتھ محبت رکھی ہے۔ فلادیلفیا لودیا کے صوبہ سردیس سے 28 میل جنوب مشرق کی طرف یہ واقع ہے۔ یہ شہر کئی بار زلزلوں سے تباہ ہوا اور قیصر تبریاس نے اسے تعمیر کے لیے مشہور ترین آدمی یہ ہے، جس نے کئی بار جب زلزلے آئے تباہ ہوا، اور قیصر تبریا ان کاموں کے لیے، تعمیراتی کاموں کے لیے وہ مشہور ہے۔ اس نے ان کو دوبارہ کئی بار بنایا۔ فلادیلفیا کے گرد و نواح کی سرزمین یہ بہت زیادہ زرخیز زمین ہے، اور وہاں پر فصلیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر معدنیات سے بھی یہ زمین پر ہے، لبریز ہے۔ انگور کی فصل یہاں سب سے زیادہ یہ فصل ہوتی ہے۔ انگور ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر شراب کا کاروبار بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر شراب کا ایک دیوتا ہے جس کی پوجا ہوتی ہے، جس کی پرستش ہوتی ہے۔ یوحنا کے دور میں اس جگہ یہودیوں کی بہت بڑی آبادی تھی۔ کلیسیا مسیحیت کے زیادہ نشانات یہاں پر نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر 25 گرجا گھروں کے کھنڈرات یہاں پر موجود ہیں۔ بڑے بڑے عبادت خانے اور سنگ مرمر کے بڑے بڑے ستون وہاں پر نظر آتے ہیں۔ 1914 تک
नामी मसीहत की गवाही कायम वहां रही। सब लोग शहर छोड़कर आखिरकार यूनान चले गए और कोई दूसरे शहरों में। इस तरह हम देखते हैं कि फिलदिल्फिया की कलीसिया जो है ये आज जो है ये ज़मीन पर नहीं नजर आती। कलाम मुक़द्दस की रोशनी में सरदीस की कलीसिया के बारे में कलाम मुक़द्दस में से हम आयत बा आयत इसका मुतालिया कर लेते हैं। मेरे अज़ीज़, जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते बगौर अच्छे तरीके से तो खुदावंद का कलाम ही हमें आसानी के साथ ये सब कुछ सिखा देता है। पहली आयत में लिखा है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता कि तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है। हमने सरदीस की कलीसिया के बारे में ये देखा है कि वो अपने आप को जिंदा कहती है पर वो जिंदा है नहीं। और यहाँ पर फिलदिल्फिया की कलीसिया के बारे में खुदावंद यूं फरमाते हैं, यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के 7वीं आयत है, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। हम यहां पर ये बात देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से कि जो कदूस है, जो पाक है, जो मुक़द्दस है, मेरे अजीज, आसमान पर फरिश्ते कदूस 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 फरमाते हैं। खुदा के हुजूर में वो चला उठते, कहते, इबादत करते, कदूस कदूस तो पाक है, तो पाक है, तो मुबारक है। मेरे अजीज, लिखा है जो कदूस और बरहक है, पाक है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह झूठी तालीम के बरअक्स तमाम सच्चाई का वो मंबा है। मेरे अजीजों, यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है फिलदिल्फिया की कलीसिया के बारे में। फिलदिल्फिया की कलीसिया के बारे में बहुत खूब लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, जो कदूस और बरहक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के लिए हैं। बरहक, हम ये देखते हैं कि झूठी तालीम के बरअक्स तमाम सच्चाई का मंबा वो है। इतनी ज्यादा मुताबिक और बरगश्तगी के दरमियान सिर्फ खुदावंद मसीह ही एक शख्सियत है जो कामिल सच्चाई है। इसकी पाकीज़गी और सच्चाई हमेशा इकट्ठी रहती है। कलीसिया को सच्ची तालीम और पाक चाल चलन और दोनों खूबियां रखनी चाहिए। मेरे अजीज, जब हम कलाम मुक़द्दस को पहला पत्रस और उसका पहला बाब देखते हैं, पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 15वीं आयत, कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। खुदावंद का बंदा कहता है, जिसने तुम्हें बुलाया है वो पाक है और तुम भी उसकी तरह पाक बनो। चाल चलन तुम्हारा नेक हो, पाक हो, ठीक हो। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी उसी तरह, तुम भी तुम्हारे सारे चाल चलन में तुम पाक बनो। तमाम कामों में, चाल चलन में, उठने बैठने में, आने जाने में तुम्हारा चाल चलन बिल्कुल पाक साफ हो। मेरे दिलों, हमें भी अपने चाल चलन को पाक करना है। इसलिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा खुदा नहायत पाक है और वो बुजुर्ग है और वो बुजुर्गी के लायक है।
کلام مقدس میں یہ لکھا ہے میرے عزیز، وہ برحق ہے۔ وہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ خدا برحق ہے، وہی تمام جھوٹی تعلیم کے برعکس تمام سچائی کا وہی منبع ہے۔ وہ قدوس ہے، وہ برحق ہے۔ میرے عزیز، داؤد کی کنجی اس کے پاس ہے۔ وہ یہ کہتا اور فرماتا ہے، داؤد کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں سے ہم یہ بات دیکھ لیتے ہیں، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا یسایہ 22 باب اور 22 آیت، کلام مقدس میں سے یسایہ 22 میں کلام مقدس میں لکھا ہے، اور میں داؤد کے گھرانے کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی کھولے گا نہیں۔ ہاللیلویا! یہاں پر لکھا ہے میرے عزیز، کلام مقدس میں پیغمبر کے ذریعے یہ پیغام جو ہے یہ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز، یہ بڑی پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے، جو کہ مکاشفہ کی کتاب میں کہ خداوند یسوع مسیح داؤد کی کنجی رکھتے ہیں۔ میرے عزیز، داؤد کی کنجی ان کے پاس ہے، داؤد کے سارے خزانے اس کے کنٹرول میں ہیں، اور داؤد اور بنی اسرائیل کا مکمل کنٹرول اس کے پاس ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ خداوند یسوع سے فرماتے ہیں، مجھے آسمان کا اور زمین کا اور کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ داؤد کی کنجی، داؤد کی اصل نسل، اس کا تخت، سب کچھ یسوع مسیح کو یہ دے دیا گیا ہے۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں جب ہم اور آگے بڑھتے، اعمال 16 میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اعمال 16 کلام مقدس میں، اعمال 16 میں اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہے، اور اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ پار اتر کر مقدونیوں میں آ اور ہماری مدد کر۔ اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا، تاکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلوایا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ داؤد کی کنجی جس کے پاس ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح چابی لگاتا ہے اور کھولتا ہے، وہ دروازوں کو کھولتا ہے، وہ بند دروازوں کو کھولتا ہے، وہ گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بھورے سے اٹھاتا ہے اور وہ اس کو تخت پر بیٹھاتا ہے، تخت شاہی پر بیٹھاتا ہے۔ میرے عزیز، وہ اپنے لوگوں کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کنجی ہے، اس کے پاس کی ہے، اور وہ کنجی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم میری منادی کا کام کرو۔ اور اس نے داؤد کی کنجی جو ہے وہ یسوع کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ یہاں پر کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہے، اس کی منت کر کے کہتا ہے، یہ رویا دیکھتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر، رویا میں۔ اور پھر آگے لکھتا ہے، اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کو بلوایا ہے۔ میرے عزیز، وہ دروازے کھول دیتا ہے تاکہ ہم
وہاں جائیں جہاں پر خدا ان کے کلام کو سنانے کی ضرورت ہے۔ وہ دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ داؤد کی کنجی ہے۔ پہلی بات، داؤد بنی اسرائیل کا بادشاہ، اس کے خزانے، دولت، عظمت، شہرت، سب کچھ یسوع مسیح کو دے دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ تو داؤد کے تخت پر بیٹھے گا۔ جب ہم لوگ کا پہلے باب میں جاتے ہیں اور فرشتے کے پیغام کو جو مقدسہ مریم کو دیا، وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں میرے عزیز، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے، مبشروں کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے اور وہ ایسے وسائل مہیا کرتا ہے کہ وہاں پر منادی کا کام جاری اور ساری ہو، اور وہ رویا کے ذریعے اپنے خادموں کو بتاتا ہے کہ آپ وہاں جاؤ، جس طرح کلام مقدس میں فلپس سے کہا کہ تو حبشی خواجہ کے پاس جا اور اسے کلام سنا۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا لوگوں کو وہاں پر پہنچا دیتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں 2 باب کی 12ویں آیت ہے۔ لکھا ہے، اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو ترواس میں آیا اور خداوند نے میرے لیے دروازہ کھل گیا۔ ہاللیلویا! جب خدا کے خادم جاتے ہیں اور وہ ارادہ کرتے تو پھر آگے جب جاتے تو ان کے لیے دروازے کھل جاتے۔ خداوند اپنے خادموں کو وہاں لے جاتے جہاں ان کی ضرورت ہوتی۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں لکھا ہے، جب ہم کلام مقدس کا بغور مطالعہ کرتے 7ویں آیت میں، تو اس کے آخری حصے میں وہ جو لکھا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، اور تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے۔ وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے، تھوڑا سا عمل کیا ہے، تجھ میں تھوڑا سا زور بھی ہے، قوت بھی ہے، تو کوئی ڈرپوک نہیں ہے۔ جس طرح آج پوری دنیا کورونا سے ڈر گئی ہے، چرچز بند پڑے ہیں، میرے عزیز، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بزدل خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں لکھا ہے فلادلفیا کی کلیسیا کے بارے میں کہ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، تو کلام کو سناتا ہے، تو دوسری دنیا میں جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور تو ان کو کلام سناتا ہے، تو میرے لیے لوگوں کو جیتتا ہے۔ اس لیے میں نے تیرے لیے دروازوں کو کھول رکھا ہے۔ اور وہ لکھتا ہے کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو نے میرے کلام کا، میرے نام کا تو نے انکار نہیں کیا۔ میرے عزیزو، اس دور میں جو یسوع کا نام لیتے، جو یسوع کا نام لیوا لوگ ہوتے، ان کو دنیا والے مار دیتے، تنگ کرتے، پریشان کرتے، اور ان پر دکھ اور مصیبتیں آ جاتی، آ ٹوٹتی۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تم میں تھوڑا سا زور ہے، تھوڑی سی قوت ہے، اور پھر کہ میرے کلام پر تم نے عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ اس لیے جب میں بھی باپ کے سامنے جاؤں گا تو تمہارا انکار نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہارا اقرار کروں گا۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں لکھا ہے
जब हम और आगे बढ़ते हैं, खोई हुई दुनिया को निजात का पैगाम ये लोग पहुंचाते, खुदा उनके लिए वसीले पैदा करता और दरवाज़ों को खोल देता। वो कलाम पर अमल करते और वो इनकार न करते। मेरे अजीज़, खुदावंद यीशु मसीह फिलदेल्फिया की कलीसिया को बहुत ज़्यादा प्यार करते और उनकी बहुत सारी सफ़ात को वो बयान करते। आइए कलाम मुक़द्दस की नामी आयत को देख लेते हैं। तीसरा बाब और उसकी नामी आयत। देख, मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं। यहूदी बनी इसराइली लोग खुदावंद यीशु की कलीसिया को, मुक़द्दसों को बेइंतहा सताते और उनसे कीना रखते और कहते हैं कि उनकी बेइंतहा मुखालफत करते। तो यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और वो कहते हैं और मैं बल्कि झूठ बोलते हैं। दाम के कलाम में लिखा है, देख, मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। खुदावंद यीशु से फरमाते हैं, मैं उनको तेरे काबू में कर दूंगा। यहूदियों के बारे में कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि हम जो इनकी मुखालफत करते थे, अमाल की किताब उसका 5 बाब और 17 आयत में हम देख सकते हैं यहूदियों की मुखालफत, कि वो कितनी मुखालफत करते थे। हम अमाल 6 बाब और 12वीं आयत को देख सकते हैं। हम अमाल 7 बाब और 57 आयत को देख सकते हैं। हम अमाल 9 बाब और 23 आयत को देख सकते हैं। हम अमाल 13 बाब और 15वीं आयत को 45वीं आयत को देख सकते हैं और हम 14:5 में देख सकते हैं। मेरे अजीज, यहाँ पर इन आयात से ये साबित होता है कि बनी इसराइली लोग मसीहों से बहुत ज़्यादा ये दुश्मनी रखते और इनको ठट्ठों में उड़ाते और इनको कत्ल कराते, इनको मारते और झूठ बोलते। लिखा है, देख, मैं ऐसा करूँगा कि वो आकर तेरे पाँव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। यहाँ पर हम देखते हैं रूहानी फतह कि खुदावंद यीशु मसीह उनको फतह याब करार देते हैं और वो ये काम कहते हैं, जिस तरह के पालूस रसूल जो दमिश्क में जाता और वो परवाने लेता कि वो मसीहों को वहाँ से पकड़वाए और उनको कत्ले आम करवाए। मेरे अजीज, कलाम मुक़द्दस में ये बात आती है और ये लिखी है कि जब खुदावंद का नूर उस पर चमका तो वो घोड़े से नीचे गिर गया और जब नीचे गिरा तो वो अंधा हो गया। फिर आवाज़ आती, आए सौल, आए सौल, तो मुझे क्यों सताता है। फिर आवाज़ आती, आए सौल, आए सौल, तो मुझे क्यों सताता है। और सौल कहता है कि ऐ खुदावंद, तू कौन है। खुदावंद यीशु से कहते, मैं यीशु मसीह हूँ जिसे तू सताता है। शहर में हननिया के पास जा और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी और तू मेरा चुना हुआ वसीला है। जो कुछ तुझे करना है वो तुझे सब बताएगा। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि साउल जो है वो मसीहों को कत्लेआम करवाता है और ये बहुत बड़ा ये आलिम है शरीयत का, ये गैमलियल का शागिर्द है। मेरे अजीज, अब ये खुदावंद की पकड़ में आ गया है और अब ये उसके शागिर्दों के हुजूर में उनके आगे झुकता है। मेरे अजीज, ये खुदावंद के आगे सिजदा रेज़ होता है। मेरे अजीज, ये रूहानी फतह है। फिर हम रोम के बादशाह कॉन्स्टेंटिन के बारे में भी जानते हैं, जिसने वो रोया देखी, जंग जीती और उसने मसीहत का ऐलान किया कि बनी इसराइली लोग उनकी सख्त तरीन मुखालफत करते हैं और खुदावंद कहते हैं कि ये तेरे पास आएंगे, ये तेरे पाँव पर गिर कर तुझे सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे क्या है, मोहब्बत है। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि पलूस और बरनबास, अमाल 16 में वहाँ पर लिखा है, पलूस और बरनबास ये कैद में थे और जब दरोगा ने रूहुल कुदुस
को वहाँ पर उन कामों को देखा, उनकी इबादत को देखा और उनके गीत गाने को और उनकी बंदगी को और वहाँ पर रूह कुदुस का काम देखा, तो दरोगा जो है वो हिल जाता है, कांप उठता है और वो आकर कहता है कि आए मर्दो, मैं क्या करूं कि मैं निजात कैसे पाऊं। हम देखते हैं कि ये दरोगा उनके पांव के पास आ जाता है और आकर खड़ा हो जाता है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में ये बात आया है, ये बात लिखी है। जब हम अमाल 14 में जाते हैं, पौलुस और बरनबास को लोग देवता समझते हैं, उन्हें सिजदा करने के लिए नीचे जमीन पर झुकते हैं, उनको उठाते हैं कि खुदा को सिजदा करो भाई, हमें सिजदा न करो। और यहाँ तक कि वो उनके लिए कुर्बानी भी वो गुजारना चाहते थे उनके हुजूर में कि ये वो देवता हैं। मेरे अजीज, खुदा के कामों को देखते हुए लोग मुक़द्दसों के सामने गिरकर सिजदा करने को तैयार हो जाते, लेकिन वो कहते खुदा को सिजदा करो। जानेंगे कि खुदा उनसे मोहब्बत रखता है। नेक अमाल, नेक चाल चलन। मेरे अजीज, इन दिनों में जबकि कोरोना वायरस चल रहा है, दुनिया में लॉकडाउन है, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बेइंतहा है, हर चौथा घर जो है वो खराब नहीं है। मेरे अजीज, इन दिनों में बैतल बैप्टिस्ट चर्च ने एक बहुत अच्छा रोल अदा किया है। मैं इस चर्च के, इस कलीसिया की अब सिफ्त किए रह नहीं सकता, इसलिए कि यहाँ पर अब तीसरी दफा यहाँ पर राशन तकसीम होगा। पहली दफा 25 लोगों को दिया गया, उसके बाद 108 लोगों को यहाँ से राशन दिया गया और अब 35 लोगों को आज राशन उनके लिए आ गया है। ये कल उनको दिया जाएगा। मेरे अज़ीज़, जब हम इसको देखते हैं तो ये गालबन 4 लाख के करीब ये राशन है। और फिर एक और अच्छा काम जो है, हर रोज शाम को खाना बनता है। बहनें खाना बना कर देती हैं, सालन बना के देती हैं और फिर यूथ के बच्चे उनको तकसीम करते हैं और लोग अपने घरों में ले जाते, बच्चे ले जाते, बहनें ले जाते, बुजुर्ग ले जाते और उनको खाते। ये अच्छे और नेक काम हैं, जो ये अच्छे और नेक काम हमें करने हैं। मेरे अजीज, खुदावंद ने इंसान से बेइंतहा मोहब्बत रखी है। यूहन्ना की अंजील कलाम मुक़द्दस में से निकाल लें, यूहन्ना की अंजील और उसका 3रा बाब, यूहन्ना 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। ये आयत बहुत ज़्यादा मशहूर तरीन आयत है कलाम मुक़द्दस में से। कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना 3:16 लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। खुदा ने इंसान से मोहब्बत रखी है। जब नाफरमानी का गुनाह हमारे पहले माँ बाप से हुआ तो खुदा ने अपने बेटे का वहां पर वादा किया। और यहाँ हम देखते हैं कि उसने लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है मोहब्बत। जब हम मोहब्बत को देखते हैं तो ये खुदा की मोहब्बत है कि उसने अपने बेटे से भी दरीग नहीं किया और उसने ज़मीन पर बेटे को भेज दिया। पहला यूहन्ना देख लेते हैं कलाम मुक़द्दस में से। पहला यूहन्ना का पहला आमखत है, पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। यहाँ लिखा है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा कि ताकि हम उसके सबब से जिंदा हैं। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। ये सबसे बड़ी मोहब्बत है कि खुदा ने आसमान से अपने बेटे को
ज़मीन पर भेज दिया। जब हम नहायत गुनहगार थे, हमारे बचने की कोई उम्मीद न थी, तो खुदावंद ने अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा और उसने सलीब की चौखट पर वो हम सबों के लिए बलिदान हो गया। हाथ पाँव में कील उनके गाड़ दिए और सर पर कांटों का ताज रख दिया गया। वो सलीब पर मर गए, सलीब से उतार लिए गए, कब्र में रख दिए गए और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। मेरे अजीज, जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं और देखते हैं और हमें क़ुव्वत और हमें तक़वीयत मिलती है कि खुदा मोहब्बत का बहुत बड़ा समंदर है। वो इंसान से बेपनाह मोहब्बत रखता है। हमें भी अपने खुदावंद से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। लिखा है, क्योंकि तूने, ये 10वीं आयत है, मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आज़माइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो दुनिया के रहने वालों के ज़माने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाली है। दुनिया में एक बहुत बड़ी आज़माइश आने वाली है मेरे अजीज, बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। रहीम कुदूस खुदावंद जो है, जो पाक खुदा है, जो किबरिया की दायरे तरफ बैठता है, खुदा हक ताला का बेटा है, वो फरमाता है यहाँ पर कि खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा कहर जो है वो नाजिल होने वाला है। आज़माइश का वक्त है, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। वो फिलदिल्फिया की कलीसिया के लिए फरमाते हैं, तूने मेरे सब्र के कलाम को उस पर अमल किया है, इसलिए आज़माइश के वक्त मैं तेरी हिफाजत करूंगा। जो ज़मीन के रहने वालों के आज़माने के लिए तमाम दुनिया पर होने वाली है, आने वाली है। मेरे अजीज, खुदावंद तेरी और मेरी हिफाजत करता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ताकि कोई तेरा ताज न छीन ले। मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, मैं जल्द आने वाला हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का थोड़ा सा वक्त रह गया है और कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है, दूसरा पतरस और उसका 3रा बाब और 8वीं आयत, इसको पढ़ लेते हैं और फिर कलाम मुक़द्दस को हम सीखते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, दूसरा पतरस 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत है, तो ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रही कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद का एक दिन है और हमारे 1000 साल हैं। अगर हमारे 1000 साल हैं तो खुदावंद का एक दिन है। खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पर गए हुए 2000 साल होने को हैं, यानी ये समझ लीजिए कि अभी 2 ही दिन अभी हुए हैं। वो कहता है और वो ये फरमाता है कलाम मुक़द्दस में 11वीं आयत में, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है, जो तेरा ईमान है और जो तेरे नेक आमाल हैं, जो तू कर रहा है, जो तू खिदमत कर रहा है, जो तू खिदमत गुजारी के काम करता है, जो तू कलीसिया के अंदर करता है, वो तू किए जा और इसे थामे रहे। मेरे अजीज, हमें इन सब कामों को थामे रहना है और ये सब काम हमें करने हैं। मेरे अजीज, जब हम कलाम मुक़द्दस की गहराई में जाते हैं तो कलाम मुक़द्दस में ताज का जिक्र है, कलाम मुक़द्दस में ताजों का जिक्र है, ताज का जिक्र है। कलाम मुक़द्दस में जो बरगज़ीदा लोग हैं, जो मुक़द्दस हैं, उनके लिए कलाम मुक़द्दस में जो लिखा है कि उनके लिए निजात बख्शिश है। और जो अच्छे नेक काम करते, खिदमत गुजारी के काम करते और जो उसके नाम में शहीद होते, जिन्हें शहादत का दर्जा मिलता, और खुदावंद ने उनके लिए इनाम रखे हैं और ताज रखे हैं। हम थोड़ी स्टडी कर लेते हैं मुक्ता अल मुकाशफा की किताब की। लिखा है, नए अहदनामा में बहुत से ताजों का जिक्र है जो मुख्तलिफ ज़बानों में इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। ये ताज हमेशा की ज़िंदगी के लिए नहीं, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी एक मुफ्त
बख्शिश है। मुकाशफा 2:10, याकूब 1:12 और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिलदिल्फिया की कलीसिया को ताज जीतने की तरगीब नहीं दी गई, क्योंकि तेरा ताज के अल्फाज जाहिर करते हैं कि इसके पास पहले ही मौजूद है। पौलुस को पहले ही इल्म था कि इसके लिए एक ताज रखा है। यहाँ कलीसिया को यह तरगीब दी जाती है कि इस ताज को वो थामे रहे। हमें अपने ताज को थामे रहने के लिए आखिर तक वफादार रहने की ज़रूरत है। ये भी एक गौर तलब अमर है कि ताज के इनाम का जिक्र सिर्फ और खत यानी स्मरना के नाम खत में हुआ है, क्योंकि सिर्फ फिलदिल्फिया और स्मरना की 2 कलीसियाएं हैं जिन की किसी बात में मलामत नहीं हुई। खुदावंद के पास इनके लिए सिवाय तारीफ के और कुछ नहीं, बस वो ताज के हकदार हैं। हर वफादार ईमानदार के लिए एक ताज रखा है, बशर्ता कि वो आखिर तक उसे थामे रहे। और इसकी 12वीं आयत में लिखा है, जो गालिब आए उसे अपने खुदा के मुक़द्दस में एक सतून बनाऊंगा और कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी इस नए यरूशलेम का नाम जो मैंने खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है और अपना नया नाम इस पर लिखूंगा। गालिब आने वालों के लिए इनामात हैं कलाम मुक़द्दस में। हमने इस कलीसिया के लिए नामी आयत में खुदावंद का ये वादा देखा है कि वो शैतान की जमात को इनके काबू में कर देगा। फिर हमने 10वीं आयत में कलीसिया के उठाए जाने का वादा भी देखा है। अब इस आयत में गालिब आने वालों के लिए 2 वादे हैं जिनमें बहुत से इनामात का जिक्र है। पहला वादा ये है, मैं इसे अपने खुदा के मुक़द्दस में एक सतून बनाऊंगा। इस वक्त खुदा का मुक़द्दस कलीसिया है। पहला तिमोथियस 3:15 में ये लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है। फिर कलाम मुक़द्दस में पतरस 2:5 में लिखा है। इब्रानियों 3:6 में लिखा है। और याकूब और कायफा और यूहन्ना को कलीसिया के सतून कहा गया है। गलातियों 2:9 में लिखा है, क्योंकि वो 12 रसूलों में से सरकर्दा शुमार होते थे। बस जो कोई खुदावंद का काम जान पेशानी से करे और कलीसिया की तामीर और तरक्की का सबब बने, वो कलीसिया में सतून की मानद है जो भारी बोझ उठाने के काम आते हैं। सुलेमान की हैकल में पीतल के 2 बड़े सतून थे, एक का नाम बोयस और दूसरे का नाम यकिन था, और यह कुव्वत और जीनत को पेश करते थे। पहला सलातीन उसका 7:21 में लिखा है। खुदा यिर्मयाह नबी को यहूदा के बादशाहों, अमीरों, काहिनों और मुल्क के लोगों के मुकाबले लोहे के सतून बनाता है और कहता है, तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे। यिर्मयाह 1:18 में लिखा है। यहाँ खुदा यिर्मयाह के कायम और मजबूत रहने की तरफ इशारा करता है। इन तीनों मिसालों में सतून को रूहानी मानों में इस्तेमाल किया गया है। पुख्तगी, मजबूती, काबिल एतबार होने को जाहिर करता है। गालिब आने वाले ये वादा है कि खुदावंद मसीह इसे अपने खुदा के मुक़द्दस में एक सतून बनाएंगे। मुकाशफा की किताब में खुदा के लिए एक मुक़द्दस का जिक्र है। 7 दफ़ा कहा गया है जो आसमानी मकाम में है। मुकाशफा 7:15 में, 11:12 में, फिर 11:9 में, 14:15 में, और फिर 14:17 में, और फिर 15:5 में और 15:8 में। ये एक हकीकी मक़दस है जो पहाड़ पर मूसा को दिखाया गया था ताकि इसकी मानद ज़मीन पर खुदा के लिए एक मस्कन बनाए। खरूज 25 बाब और उसकी 8 है। चनाचे खेमा, एजतमा और सुलेमान की हैकल दोनों इस आसमानी मुक़द्दस की नकल थी। मेरा ख्याल है कि गालिब आने वाले इस आसमानी
मुक़द्दस में सतून नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि वो बनाए आलम से पेशतर आसमान पर बन चुका था और अब इस बात की ज़रूरत नहीं कि इंसानों को इसमें सतून बनाया जाए। आखिर में एक मक़दस का जिक्र पढ़ते हैं जो मुकाशफा 21 बाब और उसकी 22वीं आयत में है। मैंने इसमें कोई मक़दस ना देखा, इसलिए कि खुदा कादिर मुतलक और बर्रा इसका मक़दस हैं। नए यरूशलेम शहर में खुदा और बर्रा इसका मक़दस होंगे। इस बात को पूरे तौर पर समझना कि खुदा और बर्रा किस तरह नए यरूशलेम को मुक़द्दस होंगे अभी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि कलीसिया बाप और बर्रे के साथ एक हैं। चुनांचे खुदा मसीह ने फरमाया, जिस तरह आए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हूँ। ये यूहन्ना 17 बाब और उसके 21 आयत। अगर नए यरूशलेम में बाप और बर्रा मुक़द्दस होंगे तो गालिब आने वाले मुक़द्दसीन भी इनके साथ मुक़द्दस का एक हिस्सा हो जाएंगे, जिनको सतून का नाम दिया गया है। फिलदिल्फिया के ईमानदार सतूनों की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि इनके पुराने शहर के खंडरात में संगे मरमर के बहुत से शानदार सतून मौजूद थे, जो इनकी खूबसूरती, मजबूती और पायादारी को वो जाहिर करती। पास ये समझना आसान है कि कोई फिलदिल्फिया के मुक़द्दसों को खुसूसन सतूनों की मानद बनाने का वादा किया गया है, फिर वो कभी बाहर ना निकलेगा। खुदावंद यीशु मसीह का कहना है कि वो फिर कभी खुदा के मुक़द्दस से बाहर ना निकलेगा। खुदा के साथ अपनी रफ़ाकत को जाहिर करता है। वो सब नए यरूशलेम में जहाँ खुदा की ख़ास हजूरी होगी दायमी सुकूनत करेंगे और हकीकत तमाम सच्चे ईमानदार हमेशा तक खुदा के साथ रहेंगे। कलाम मुक़द्दस में हम ये देखते हैं मत्ती 17 बाब और पहली आयत और 26 बाब 37 आयत और लूका 8:51 में हम देखते हैं 3 इम्तियाजी निशान हैं गालिब आने वालों के लिए। खुदावंद मसीह का दूसरा वादा 3 इम्तियाजी नाम हैं जो इनके इम्तियाजी शनाख्त के लिए होंगे। खुदा का नाम पहला और फिर आगे दूसरा, खुदा के शहर का नाम और तीसरा खुदावंद यीशु मसीह का अपना नया नाम। ये बात काबिल गौर है, यहाँ ये नहीं लिखा कि इन नामों को कोई ना जानेगा, जैसे मुकाशफा 3:17 में लिखा है। इन तीनों नामों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों नाम कलाम में मज़कूरा हैं। खुदा का नाम पुराने अहदनामे में बड़ी सफाई के साथ दर्ज है। यहोवा है, जिसका तलफ़्फ़ुज़ यावे है, ताकि वो जान ले कि तू ही जिसका नाम यहोवा है तमाम ज़मीन पर बुलंद वाला है। ज़बूर 83 उसकी 18वीं है। खुदा ने मूसा से फरमाया, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदाए कादर के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने नाम अपने यहोवा नाम से इन पर जाहिर न हुआ। खरूज 6:3 में ये लिखा है, ये खुदा का असली और सबसे मुक़द्दस नाम है जो बनी इसराइल कौम आमतौर पर ज़बान पर लेना मुनासिब नहीं समझते थे, लेकिन इनसे सदियों पेशतर आदम के जीते जी यहोवा का नाम लेकर दुआ करते थे। पैदाइश 4:26 में ये लिखा है। ये नाम किताब मुक़द्दस में कई दफ़ा आया है और इनके मानी जिंदगी देने वाला। ये कितनी इज्जत अफजा बात है जब गालिब आने वालों पर खुदा का अपना नाम लिखा होगा। ये नहायत इम्तियाजी नाम होगा और सिर्फ गालिब आने वालों के लिए होगा। ये नाम मुकाशफा 22:4 के मुताबिक इनके माथों पर लिखा जाएगा। दूसरा नाम खुदा के शहर का नाम होगा जो मुकाशफा 3:12 और 21:2 में बड़ी सफाई के साथ जाहिर किया गया है। नया यरूशलेम को भी खुदा का शहर कहा गया है। ज़बूर 46:4 में 48:1 में कलाम मुक़द्दस में एक
8 और फिर 87:3 में। अबरानियों कलाम में लिखा है, अबरानियों के खत में लिखा है 12:23 में और मुकाशवा 3:12 में, लेकिन नए यरूशलेम को ज़मीनी यरूशलेम से कहीं ज़्यादा फौकियत हासिल है, क्योंकि ये खुदा की अब्दी सुकूनतगाह होगी और बर्रा और कलीसिया अब तक इस शहर में खुदा के साथ रहेंगे। यही शहर खुदावंद मसीह की 1000 साला बादशाही में ज़मीनी यरूशलेम के ऊपर होगा, लेकिन नज़र नहीं आएगा, और कलीसिया इसमें रहकर मसीह के साथ बादशाही करेगी, क्योंकि गालिब आने वाले के लिए जलाली बनूने होंगे। इसलिए इस जलाली शहर का नाम ही इन पर लिखा जाएगा। तीसरा नाम खुदावंद मसीह का अपना नाम है। खुदावंद मसीह के 2 नाम मुकाशवा 19:13 और 19:16 में दिए गए हैं, यानी कलामे खुदा और बादशाहों का बादशाह, क्योंकि गालिब आने वाले खुदावंद मसीह के साथ बादशाह करेंगे। इसलिए दूसरा नाम यानी बादशाहों का बादशाह इन पर लिखा जाएगा। गालिब आने वालों को ये 3 इम्तियाजी नाम देकर खुदावंद मसीह इनको यकीन दहानी कराते हैं कि वो खुदा के साथ इम्तियाजी तौर पर पहचाने जाएंगे, वो खुदा की खास जात मलकियत होंगे और इसके अब्दी घराने का एक अहम हिस्सा होंगे। खुदावंद इस आयत में 4 दफ़ा मेरा इस्तेमाल करते हैं, जो उनके इख्तियार और ऊंचे दर्जे को जाहिर करता है। मेरे ज़िदो कलाम मुक़द्दस में जब हम इस आयत को बगौर हम मुताला करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो गालिब आए इसे अपने खुदा के मुक़द्दस में से एक सतून बनाऊंगा और वो कभी बाहर नहीं जाएगा। अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी नए यरूशलेम का नाम जो मैं खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। इसके बारे में हमने मुफ्ता अल-मुकाशवा की किताब का बहुत मुतालिया हमने किया है। मेरे अज़ीज़ों, आखिरी आयत में लिखा है 13वीं आयत में, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मेरे अज़ीज़ों, हर कलीसिया के लिए ये कहा है कि मेरी आवाज़ को सुनो, और वो फरिश्ता कहता है, खादम से कहता है, खादम कलीसिया से कहता फरमाता कि इस कलाम को सुन लो और इस पर अमल कर लो। अपने कानों को खोल लो और इस कलाम को सुन लो और सुनकर इस पर अमल कर लो। खुदावंद तुझे और मुझे और फिलदिल्फिया की कलीसिया को वो खुशियां देना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में ये बात लिखी है कि तेरा और मेरा मसीहा जल्द आने वाला है। फिलदिल्फिया की कलीसिया के नाम, खत और पैगाम सिर्फ फिलदिल्फिया की मुकामी जमात के लिए ही नहीं बल्कि बहुत बाद के ज़माने के लिए भी है। ये कलीसिया एक ऐसी सच्ची कलीसिया की तस्वीर है जो उठाए जाने से थोड़ी देर पहले होगी। इस कलीसिया का ज़माना तवारीख में आखिरी 2.5 सदियों से है, यानी 1750 तक, और अब भी जारी है। यह कलीसियाई तवारीख का सबसे बड़ा बिशारती ज़माना था, जिसमें प्रोटेस्टेंट्स मसीहों में बड़ी बेदारी के सिवा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में खुशखबरी फैलाने का काम शुरू किया गया। हमें याद रखना चाहिए कि फिलदिल्फिया, लौदीकिया की कलीसियाएं वक्त साथ साथ मौजूद रहेंगी, हत्ता कि सच्ची कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी और नीम गर्म कलीसिया मुंह से निकाल फेंकी जाएगी। आज हम इसी ज़माना में रह रहे हैं जब फिलदिल्फिया और लौदीकिया की कलीसियाएं इकट्ठी मौजूद हैं। फिलदिल्फिया की कलीसिया जो सच्ची कलीसिया को जाहिर करती है, इस बड़ी मुसीबत में से नहीं गुजरेगी, बल्कि इससे पहले ही ऊपर उठा ली जाएगी, ताकि हवा में
खुदा उनका इस्तकबाल करे। लौदीकिया की कलीसिया जो नामी मसीहों को पेश करती है मुसीबत में से गुजरेगी और मसीह की दूसरी आमद पर इसकी अदालत होगी। मेरे अजीजों, हर कलीसिया से कहा गया है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मेरे अजीज, कबूलियत का वक्त है कि हम अपने खुदावंद को कबूल कर लें और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके अपना मन उसे दे दें। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दें। आमीन।